नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अरावली जिले में मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने चांदीपुरा वायरस संक्रमण को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। जिले में कुल 3 संदिग्ध मामले पाए गए हैं, जिनमें सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी। इस वायरस का प्रभाव भिलोड़ा और मेघराज तालुका में देखा गया है। सीमा क्षेत्रों में 25 टीमें जांच जारी रख रही है। बच्चों को लंबी बीब्स और पैंट पहनने की सलाह दी गई है। In Aravali district, 3 cases of viral encephalitis have been reported up till now, among which 2 of the children have died and 1 of the patient is under treatment in GMRS General Hospital, Himatnagar. This is a suspected cases of viral encephalitis, maybe due to the Chandipuram virus or any another virus. The laboratory sample has been sent to the National Institute of Virology, Pune, and when the reports of the come, we will let you know about which type of virus it is. So up till then, we have organized the preventive measures also for that. So in all the PHCs, CHCs, sub-district hospital and general hospital, we have arranged for the wards for the treatment of these patients. And we are doing an active surveillance activity in those villages from which the cases have been reported. We have completed all the surveillance activity in which the cases have been reported. Now we are shifting our surveillance activity to those villages which are in the border areas of Rajasthan state. So we are having almost 20 villages in Bhiloda Tehsil and 11 districts in Meghras Tehsil, which are adjoining the state of Rajasthan. So intensive active surveillance activity is going on in these villages, and 5% malathion dusting powder is used for the prevention and for this disease. These powder, 5% malathion powder, is dusted over those houses which are made of the mud, especially which are made of the muds. And so all the houses which are made of the mud and there is a hygiene is not proper, those type of the houses are being sprayed and fumigated by these 5% malathion powder. And all the precautionary measures which are taken to prevent this epidemic, we are taking all those measures. मेहसाणा पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में कानूनी धन उधार गतिविधि विशेष अभियान के तहत एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महानिदेशक एवं मुख्य पुलिस अधीक्षक गुजरात राज्य गांधीनगर एवं पुलिस उपायुक्त गांधीनगर संभाग गांधीनगर एवं पुलिस अधीक्षक मेहसाणा के निर्देशानुसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूदखोरों के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करना और गुजरात वित्त देवदार अधिनियम 2011 के तहत सूदखोरों के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करना था। आज મહેસાણા જિલ્લામાં એક જનસંપર્ક સભા યોજવામાં આવી છે, જેમાં અમે જિલ્લા કક્ષાએ સમાજ કલ્યાણ વિભાગના અધિકારીની હાજરીમાં તથા જે બેંકના પ્રતિનિધિઓ છે, એ પ્રાઇવેટ બેંક અને ગવર્મેન્ટ અંડરટેકિંગ જે બેંક છે એ તમામના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં સામાન્ય નાગરિક એક વ્યાજખોરો પાસેથી વ્યાજે પૈસા લઈ અને વ્યાજના ખપ્પરમાં જે હોમાઈ જતો હોય છે, એમાંથી મુક્ત થવા માટે અને એનાથી દૂર રહેવા માટેનું આજનો આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। ગૃહ વિભાગ તરફથી વ્યાજખોરો વિરુદ્ધમાં જે કાર્યવાહી કરવા માટે ગેરકાયદેસર રીતે લોકો પાસેથી 12%, 15%, 20% વ્યાજ જે રીતે લઈને અને સામાન્ય નાગરિકને આત્મહત્યા કરવા સુધીના એમાં પ્રયોજન સુધી આ લોકો લઈ જાય છે, એના વિરુદ્ધનું એક આ અભિયાન રાખવામાં આવેલું છે। સામાન્ય નાગરિક બેંકમાંથી લોન લે, વ્યાજખોરો પાસે ન જાય અને પોતાની જે જરૂરિયાત છે, ધંધાકીય જરૂરિયાત છે, સામાજિક જરૂરિયાત છે કે અંગત જરૂરિયાત છે, એના માટેનું એક આગોતરું આયોજન કરે એનો એક આ શિક્ષણ કાર્યક્રમ અહીં આગળ રાખવામાં આવેલો હતો, જેમાં મહેસાણા જિલ્લાના નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલા છે અને આજરોજ આ બેંકના પ્રતિનિધિઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલા છે। મહેસાણા જિલ્લા પોલીસનો એક અભિગમ રહ્યો છે
કે સામાન્ય નાગરિક સુખાકારી જીવન જીવે એના માટે જરૂરિયાત પૈસાની તમામ માણસોને હોય છે, પણ એ પૈસાની જરૂરિયાત માટે કોઈ પણ વ્યાજખોરો પાસે ન જાય અને વ્યાજના ખપ્પરમાં ન હુમાય, બેંકો પાસેથી જે નાણાંની જરૂરિયાત છે એ લોન પેટે મેળવે। અને એક સામાન્ય નિયમ છે કે વ્યાજખોરો પાસે જે બહુ મોટા પ્રમાણમાં વ્યાજ ભરવામાં આવે છે, જ્યારે બેંકોમાં મર્યાદિત વ્યાજ લેવામાં આવતું હોય છે, વાર્ષિક વ્યાજ લેવામાં આવતું હોય છે, તો બેંક લોન મેળવી અને પોતાની જરૂરિયાત છે એ પૂરી કરે એવો એક हमारा तरफ આ संदेश है। रायगढ़ से करीबन 6 किलोमीटर दूर चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम चिटका कानी में कल जयदेव गुप्ता का निधन हो गया था। देर शाम दाह संस्कार किया गया और परिजन घर लौट आए थे। तीजनान करने और अस्थि विसर्जन हेतु चर्चा के बाद सब घर पर ही थे। इसी बीच रात करीब 10 और 11 बजे के बीच पत्नी गुलापी गुप्ता पेशाब करने के लिए निकली, लेकिन काफ़ी देर तक घर नहीं आने के कारण परिजनों ने अड़ोस पड़ोस में खोजबीन शुरू कर दी। कहीं नहीं मिलने पर लगभग बस्ती से 500 मीटर दूर स्थित शमशान घाट खोजने परिजन गए, जहां गुलापी तो नहीं दिखी मगर उसके कपड़े, चप्पल और चश्मा चिता के बगल में पड़े मिले। इसकी सूचना रात में ही चक्रधर नगर थाने में दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची थी। इसके बाद सुबह 9 बजे पुलिस विवेचना के लिए पहुंची। गुलापी के पुत्र सुशील गुप्ता का कहना है कि उसकी मां चिता में ही अग्नि स्नान कर जान दे दी और सती हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि चिता ठंडा होने के बाद उसकी जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में गुलापी जलकर मर गई या फिर गुम हो गई। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील गुप्ता है। क्या घटना हुई आपके परिवार में? अपने पापा तो मैंने कैंसर से पीड़ित थे, कैंसर पीड़ित में थे, अभी उनका 1.5 साल हो गया। और मैंने कल अपना वही मेडिकल कॉलेज में उनका तो डेथ हो गया। डेथ होने के बाद हम लोग उनका दाह संस्कार किए और वही 4 साढ़े 4 बजे तो उनका दाह संस्कार हुआ। उसके बाद हम लोग आए। फिर माने हम लोगों का तो ये तो रहता है कि अपना 3 दिन में एक वो माने प्रथा रहता है कि ती वाला। अब उसके बाद हम लोग तो सब चीज़ का विचार किए। विचार करने के बाद फिर मैं बोला कि आज उनको नहीं बोलते हैं अभी मम्मी को, वो तो फिर अभी थोड़ा वो में है, और उनको फिर हम लोग सुबह उनको फिर बोलेंगे कि तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ, ये जो है अपना मन दाह संस्कार के लिए, अपना मन गंगा में स्नान के लिए। उसके बाद वो 11:30 से 12 बजे के बीच में अब वो फिर मैंने बोली कि मैं यूरिन से आ रहा हूँ। यूरिन से आने का तो फिर हम लोग देखे कि वो उसका तो पता पता नहीं है। उसके बाद तड़ोस पड़ोस सब साइड उसको खोजे अपना। उसके बाद 2-3 जन उधर गए कि अपना तो फिर उधर तो नहीं है बोल के, चिता की ओर। हाँ चिता की ओर। उसके बाद वहाँ गए और देखे तो उसी में ही उसका वो तो हो गया था, और वो उसी में ही उसका माने सती प्रथा जो बोलते हैं तो उसी में उसका माने उसका पूरा लीन हो गया था। ग्राम चिटका पानी थाना चक्रधर नगर में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक ग्रामीण श्री जयदेव गुप्ता जी जो कि 65 ईयर के थे, उनकी कैंसर से कल 11 बजे मृत्यु हुई थी और शाम को 5:30 बजे उनको अंतिम संस्कार दिया गया था। जिसके बाद उनकी पत्नी माता जी जो गुलाबी गुप्ता जी है, वो शाम को करीब 11 बजे तक घर में थी। शाम को 11 बजे के बाद वो कहीं चली गई है और परिवार को अंदेशा है कि कहीं उनकी जलकर मृत्यु हुई है क्या। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है।
सर जो चिता स्थल है वहाँ पर कुछ अवशेष मिले सामान वगैरह सर मृतका के क्या? ये पूरे मामले में जांच की जा रही है। अभी तक जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि श्री जो जयदेव गुप्ता जी है उनको करीब शाम को 5:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया था और जो माता जी जो गुलाबी गुप्ता जी है वो करीब 10:30-11 बजे तक अपने घर में ही थी। 11 बजे के बाद वो कहीं गए हैं, तो उसके बाद क्या क्या घटना हुई है उसकी पूरी जांच की जा रही है। आपदा वाले एंगल पे भी जांच की जा रही है? सभी एंगलों पे जांच की जाएगी। महिला की उम्र क्या हुई सर? महिला की उम्र करीब 57 ईयर है। अलीगंज के सेक्टर ई में अपने ठगी योजनाओं से लोगों को लूटने वाले शाइन सिटी के ब्रोकर ज्ञान प्रकाश उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी में अलीगंज की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सहयोग किया है। उस पर 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। शाइन सिटी के घोटाले की जांच वर्तमान में EVOW कर रही है। उपाध्याय ने मर्सिडीज गाड़ी से लोगों को झांसा देकर उन्हें सस्ती ज़मीन, सोना और पैसे का वायदा करके लूटा था। 14/7/2024 को लगभग 3:10 पर थाना अलीगंज और सेंट्रल क्राइम टीम द्वारा शाइन सिटी वाला मुकदमों के संबंधित एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। प्रस्तुत अपराधी के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी था। इनका नाम है ज्ञान प्रकाश उपाध्याय पुत्र श्री अशोक कुमार उपाध्याय, जो मूलतः थाना पूरा कलंदर जनपद फैजाबाद का है और इधर लखनऊ में किराए के मकान पर सेक्टर ई अलीगंज में रह रहा था। इनके ऊपर 2020 से लेके 23 तक मुकदमा है। कुल मिला के इनका आपराधिक इतिहास में 19 मुकदमे हैं, जिसमें 67, 68, 420, 409 ऐसे तरीके से भिन्न फिनेंशियल क्राइम्स है। इस व्यक्ति के ऊपर गोमती नगर थाने में दर्ज 2 मुकदमे के संबंध में 50,000 रुपये का इनाम हुआ था, जो 5/2020 और 698/2020 है। प्रस्तुत अभियुक्त शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक ब्रोकर के तौर पे काम कर रहा था और MLM में भी हिस्सा रहा है। ये सामान्य लोगों को धोखा देने के लिए और भी लोगों को रिक्रूट किया गया था। जब तक हमारा अभी तक जो पूछताछ में ये आया था कि इन्होंने एक मर्सिडीज बेंज E-क्लास गाड़ी भी अपने साथ में इस्तेमाल करता था और अलग अलग तरीके से, जैसे किस्तों पे ज़मीन लेने के, सस्ता ज़मीन लेने के, ज्वेलरी दिलवाने के नाम पे अलग अलग तरीके के स्कीम जो शाइन सिटी चला रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फंसाकर उनका पैसा शाइन सिटी ग्रुप के लिए लगवाया गया है और खुद अपने आप लगभग 1 करोड़ के ऊपर पैसा का लाभ इनको प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत व्यक्ति को हम पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। अलीगंज में सर कब से रह रहा था और कैसे? 2020 में भी ये जेल जा चुका था। 11 महीने जेल में रहने के बाद 2021 में छूट के आया था। उसके बाद ये बहुत शातिर तरीके से लगभग 3-4 महीने में या 6 महीने में ये लगातार किराए के मकान बदल के रह रहा था। तो पुलिस लगातार इनके पीछे रहा है और हमको एक इनपुट मिला है, टेक्निकल एविडेंस में मिला है और मुखबिर खास सूचना भी मिला है कि ये प्रस्तुत व्यक्ति जो है अलीगंज क्षेत्र में किसी जगह पे निवास कर रहा है और इसी को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ के इनको गिरफ्तारी किया गया है। क्या राशिद नईम से सर इसके राशिद नईम से भी संपर्क में था, उसके भाई से संपर्क में? तो अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ में ये सामने नहीं आया है कि इनके ठीक संपर्क में था या नहीं था। फिर भी अब हम लोग इसमें पूछताछ करेंगे और आगे जाके पुलिस कस्टडी रिमांड लेके अगर पूछताछ करना है तो वो भी प्रक्रिया किया जाएगी। अकाउंट में क्या निकला है, इसके क्या अकाउंट में जो वगैरह हुआ है और ये लोग बिटकॉइन में भी लोग काम कर रहे थे और एक तरह से एक काम और था कि जो गाड़ियों को प्रलोभन देके कि हम आधे पैसे में गाड़ी देंगे उसका एडवांस देंगे, उसमें भी शामिल था क्या? इसमें जैसे मैंने बोला कि अलग अलग जो जितना भी शाइन सिटी जितना भी धोखा तरीके का प्लान चलाता था उसमें सब ये ब्रोकर रहा है। इनके नीचे भी ये लोग दूसरा ब्रोकर्स को भी जोड़ के रखा था और सब चीज़ों में इनका हिस्सा आता था, तब भी इनके खिलाफ ये मुकदमा इसमें देखिए मैंने बोला कल ही इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें विस्तृत रूप से पूछताछ करना है। जो जब तक बिटकॉइन की बात है अभी तक कोई बिटकॉइन का वॉलेट इनसे रिकवर नहीं हुआ है। जहाँ तक हमारा जानकारी है इनके द्वारा जो भी पैसा प्रॉफिट किया गया ये नगद में लिया था और बिटकॉइन के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है।
फिर भी इस विषय पर पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। साइंस सिटी से जुड़े हुए कई लोगों के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, क्या इसका भी कोई अकाउंट फ्रीज रहा है? ये EOW से ये पूरा विवेचना किया जा रहा है कि वहीं पे संपर्क करके इनका जो अभी मौजूद में अगर कोई अकाउंट यूज़ कर रहा है या कोई रिश्तेदार के नाम पे भी अगर ये घटना का पैसा का इस्तेमाल करने के लिए कोई अकाउंट खोल दिया गया है तो उसको भी फ्रीज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 सप्ताह के लिए इन बसों का ट्रायल रन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन मोहल्ला बसों में लंबे रूट नहीं होंगे बल्कि ये छोटे मार्गों पर चलाएंगी और यात्री को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। इन बसों का मुख्य उद्देश्य यात्री को मेट्रो स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़कर सार्वजनिक परिवहन को सुगम और सुलभ बनाना है। के लिए दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रायल करेगा और उसके जो भी फीडबैक होंगे, जो भी हमारी लर्निंग्स होंगी, वो सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम जो भी रूट्स होंगे। अच्छा, रूट्स का भी मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि ये रूट्स पहली बार इस प्रकार से बन रहे हैं तो हमें उसमें काफ़ी बार बार उसको हमें देखने की ज़रूरत पड़ रही है। IIT से भी हम कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिग डेटा, मोबाइल से जो डेटा किस प्रकार से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर टू एंड फ्रो कहाँ ज़्यादा है, ओरिजिन डेस्टिनेशन कहाँ ज़्यादा है, ये सारा डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी, DTC की भी और डिम्स की भी अलग अलग से वो सारे रूट्स जो है वो स्टडी कर रही हैं। ये मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मोहल्ला बसें हैं ये लंबे रूट्स नहीं होंगे इनके। जिस प्रकार से हमारा 12 मीटर की बसें हैं उस प्रकार से लंबे रूट्स नहीं होंगे। दीज विल बी शॉर्ट रूट्स, मे बी आई थिंक अप टू 10 किलोमीटर्स, हो सकता है कहीं 11 भी करना पड़े, हो सकता है कहीं 8 भी हो। जो मेन पैरामीटर्स हैं रूट डिसाइड करने के और रूट फाइनल करने के, वो 3-4 रहेंगे। वन इज कौन कौन से एरियाज जो हैं वो 12 मीटर बसों से सर्व नहीं हो रहे, मतलब कि फिलहाल हमारी DTC या डिम्स की बसें कहाँ नहीं जा पा रही। सेकंड, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बस टर्मिनल हैं, कौन से इंपॉर्टेंट बस स्टॉप्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कोई इंपॉर्टेंट कोई बिजनेस सेंटर है, ताकि हम उन एरियाज को कनेक्ट कर पाए। आई एम अगेन रिपीटिंग, मोहल्ला बस जो है वो हो सकता है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ना लेके जाए। सो द होल आइडिया ऑफ मोहल्ला बस, जो हम कम्युनिटी बस जो कह रहे हैं, इट इज टू कनेक्ट द पैसेंजर उसके घर या उसके जो भी ओरिजिन है, और हम उसको ऐसी जगह लेके चले जाएं जहां से उसको फर्दर कनेक्टिविटी मिले, फर्दर जो इंपॉर्टेंट बड़े रूट्स हैं वहां से उसको हम कनेक्ट कर सकें, कोई इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन है उससे हम कनेक्ट कर सकें, ताकि इवेंचुअली फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सके। जो ट्रायल रूट हम ये रन कर रहे हैं, तो पहला रूट जो है वो मजलिस पार्क टू प्रधान एंकले मतलब बुराड़ी के साथ से जो एक अंदर रोड जा रही है। अब इस रोड पे आज से पहले कोई बस जो है वो नहीं चली है, तो ये बिल्कुल अनसर्व्ड एरिया है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो मजलिस पार्क जो नीचे ब्लू मैजेंटा कलर में है, वहां से चल के फिर ये बुराड़ी क्रॉसिंग पे आएगी और जड़ोदा मेट्रो स्टेशन, और वहां से फिर ये ऊपर नॉर्थ की तरफ जो ये रोड है, इवेंचुअली इट विल गो अप टू प्रधान एंकले, जो लास्ट में ग्रीन शो किया हुआ है। तो ये लगभग 10 किलोमीटर का ही रूट है, और वहां से फिर ये वापस डाउन ट्रिप में अप टू मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन। तो एक रूट ये है जिसपे ये ट्रायल चलेगा। सेकंड जो रूट है वो अक्षरधाम से लेके मयूर विहार फेज 3। इसके जो इम्पोर्टेंट जो बीच में जो वाया और लोकेलिटी आएंगी, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन, त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक, राजवीर कॉलोनी पुल नंबर 1, एंड देन मयूर विहार फेज 3 पेपर मार्केट।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट जो लोकेलिटी है उनको कनेक्ट कर रही है, बीच में 2 मेट्रो स्टेशन हैं उनको भी कनेक्ट कर रही है। सो दिस इज द सेकेंड रूट जिसपे ये भी रफली ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का ही रूट है। 9 मीटर की ये बस है और इसमें जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 23 पैसेंजर्स प्लस ड्राइवर, और जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो लगभग 13 पैसेंजर इसमें स्टैंडिंग करके सफर कर सकते हैं। छोटी बस है तो सिंगल चार्ज में लगभग ये 120 किलोमीटर एक चार्ज पे 120 किलोमीटर तक ये जा सकती है। एक बार पीली वो भी दिखा दीजिए जो डिपोज का लोकेशन। तो अब मैं सिर्फ इसकी ज्योग्राफिक अगर आप देखेंगे तो ये मेन इनकी लोकेशंस हैं। ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो गाजीपुर और एयर इंडिया की उड़ान AI 0626 के अचानक रद्द होने के बाद लखनऊ हवाई अड्डे में मुंबई जाने वाले यात्रियों को लगातार दूसरे दिन परेशानी का सामना करना पड़ा। कल घोटालों में ठहराए जाने के बाद तनाव बढ़ गया क्योंकि यात्री एयर इंडिया की स्थिति को संभालने के विरोध में आज हवाई अड्डे पर लौट आए। चल रही शिकायतों के बावजूद एयरलाइन ने यात्रियों की चिंताओं को दूर करने के लिए संतोषजनक प्रतिक्रिया का या स्पष्ट संचार प्रदान नहीं किया, जिससे मुंबई की यात्रा करने का इरादा रखने वालों के लगातार अनिश्चितता और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह खबर विकसित हो रही है। स्थिति बढ़ने पर आगे के अपडेट दिए जाएंगे। बॉम्बे भेजो, खत्म, सिंपल सी चीज है। वाया दिल्ली भेजो, विस्तारा लगा के भेजो, एयर इंडिया एक्सप्रेस। अरे आप नहीं, मतलब क्या है? आप मैनेजर बुलाइए यार। उनको बोलो, उनसे मत बोलो। अरे इनसे आपसे बात ही नहीं कर रहे हमको, आप मैनेजर को बुलाइए। तो एक काम करिए, एक मैनेजर बुलाओ ना, मैनेजर को। हाँ बुलाओ मैनेजर को। आप लोग क्या कर लो? कुछ नहीं, आपके पास डिसीजन ही नहीं है कुछ। नहीं, जो आपसे बड़ा हो उसको बुलाओ। क्या तत्काल बना के रख दिया यार, क्या जरूरत है होटल भेजने का आपको? अगर आपको पता तक करना है तो रिशेड्यूल करके करी कर देते, खुद ही रिशेड्यूल कर देते। ये रेलवे उससे भी आप खुद सोचो, कस्टमर परेशान है आपको। अरे आप बदतमीजी मत करिए, आप चुप रहिए, आप मैनेजर को बताइए। सबको नेक्स्ट डे जाना था। पंतनगर लखनऊ में गांधी जी की सजीव अविद्रता की एक प्रदर्शनी दिखा रही है, जहां महिलाएं अपनी आंखें, कान और मुंह ढककर आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने घरों को बचाने के लिए जोरदार प्रयास करने का वादा किया है, चाहे इसकी कीमत जो भी हो। पंतनगर में लगभग 800 घरों पर LDA और सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए लाल निशान के खिलाफ ये सैकड़ों महिलाएं इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अपना रही है। आज यहाँ एक अलग तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गांधी जी के 3 बंदरों के स्वरूप महिलाएं बैठी हैं, क्या वजह है? देखिए, गांधी जी के 3 बंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किसी तरह की अहिंसा, किसी तरह की गलत बात और किसी तरह का गलत सुनाई नहीं करेंगे, राइट। तो ये महिलाएं जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये पूरा 850 घरों की महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हम गलत सुनेंगे नहीं, गलत कहेंगे नहीं और अहिंसा से अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ गांधी जी के 3 बंदर थे, आज गांधी जी के हजारों बंदर हैं और हम उन बंदरों में से एक हैं जो कि कहीं पे भी लटक के कहीं पे भी किसी का भी हक छीन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, जो ग्रीनलैंड डिसाइडेड होती हैं या ये सब होता है, उसके लिए बहुत सारे प्लान होते हैं जिसको अवेयर कराया जाता है पब्लिक को। That should be displayed either on the news channels or through the हर एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको बताना पड़ता है। हम एक टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो हर एक चीज़ को बात करता है, हर एक स्टूडेंट को कंसीडर करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी, कहाँ से मेजरमेंट है, क्या प्लान है, ये सब उनको डिस्कस करना पड़ेगा। मैं पूनम मिश्रा हूँ, पंतनगर से, रिप्रेजेंटिंग 850 हाउसेस इन द सोसाइटी।
थैंक यू। अमेठी में विश्व कौशल युवा विकास दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भाग लिया। मंत्री अग्रवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए यह दिन बहुत ही प्रसन्नता का दिन बताया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वदा प्रेरणा देने की बात की। उन्होंने राज्य सरकार के कौशल विकास के मिशन को आगे बढ़ाने का वादा किया और अपने विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया, जिसमें युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देना शामिल है। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि विश्व युवा कौशल दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा आह्वान करते हैं कि देश युवाओं का देश है और युवाओं को ही देश की प्रगति में साधक बनना है, योजनाबद्ध तरीके से आगे चलना है और उसमें हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास वो अहम भूमिका निभा रहा है, वो निभा सकता है। तो युवाओं को कैसे स्किल करें, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, तो प्रत्येक क्षेत्र में हमारे एकीटू के वीसी भाई साथ हैं, हमारे प्रमुख सचिव हैं, इन्होंने भी कृषि अनुसंधान केंद्र के गन्ना संधार के वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, इन्होंने भी युवाओं को अलग अलग प्रकार से कैसे स्किल फील्ड में हम अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आज बहुत बड़ा फील्ड है, ई एग्रीकल्चर, जो धान हो, गन्ना हो, गेहूँ हो, चावल हो, इसके अलावा केला हो, अंगूर हो, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उन सब में युवाओं को स्किल हम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा विशेष रूप से टाटा के साथ एमओयू हुआ, तो टाटा में 11 ट्रेड के साथ हम उन बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें हमारा ई व्हीकल्स है, जिसमें हमारा 3D प्रिंटिंग है, जिसमें हमारा सोलर है। ऐसे सेक्टर के अंदर भी युवाओं को हम स्किल्ड करने का काम कर रहे हैं। अपार संभावनाएं युवाओं को स्किल्ड करके आगे बढ़ाने की हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको हिंदुस्तान की डेवलप करनी है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते, उसमें हमारे विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे विभाग से युवा स्किल्ड होकर के अपने आप को स्वावलंबी बनाने का काम कर सकते हैं। इसके साथ हमें फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी लैंग्वेज का भी हमने किया है, क्योंकि विदेशों में अगर व्यापार करना है, काम करना है, जॉब करनी, या हिंदुस्तान के अंदर भी जो लोग इस प्रकार का बिजनेस करते हैं जिनका टाई अप विदेशों से, जापान से, चाइना से, इजराइल से होता है, तो उनमें भी हमारी विदेशी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो उनका भी प्रशिक्षण हमारे विभाग के द्वारा लगातार हो रहा है। तो हमको लगता है कि हमारा विभाग एक शानदार उपलब्धि के साथ, शानदार परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। युवाओं को हम प्रशिक्षित करने का काम करेंगे और जो इसके अंदर गैप आएंगे, स्किल गैप, एक विषय और भी है कि इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप हम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। आज इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, इंडस्ट्री कैसे युवाओं को चाहती है, कैसा उनको मैन पावर चाहिए, वैसी ही ट्रेनिंग देने का हम बच्चों को काम करते हैं। तो मुझको लगता है आज का ये शानदार दिवस है। मैं सभी युवाओं को आज के दिवस पर, विश्व युवा स्किल डे पर, बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमें विभाग के साथ जुड़ करके अपने आप को स्किल्ड करें। यूनिवर्सिटीज़ में, पॉलिटेक्निक में, सब जगह हमारा विभाग काम कर रहा है। सभी को आज के दिवस की बधाई। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।